ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਉਂਝ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਚ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤਾਲੀਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਮੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਖੁਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਜ਼ੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਇਬਾਦਤ ਯਾਦ ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਨਮਾਜ਼, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਪਾਠ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, 1 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1000 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ। 1000 ਦਫਾ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ? ਇੱਕ ਦਫਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ तो एक चित जाए एक छिन ध्यायो, काल पास के बीच न एक चित। एक सैकंड भी उदी याद है, सारे पाप धुल देने। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬੰਦ ਸਨ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ।
क्योंकि रोशनी जाण का कोई साधन ही नहीं सी। दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद, और रोशनदान बारियां नूं लगे बहुत वड्डे वड्डे मोटे मोटे पर्दे। मकान दे अंदर अंधेरा सी। 100 साल तो अंधेरा है। क्या इस 100 साल दे अंधेरे नूं कड्ढण वास्ते 100 साल लगणगे? तर्क विचार ते यही आखेगी, जिस रस्ते ते मैं जितने कदम चल के अगे पहुंचे हैं कि जे मैनू वापस आना पे तो उतने कदम चल के आना पे। जितना मैं चल के जितनी दूरी ते पहुंचे हैं, अगर अचानक मैनू वापस आना पे तो कम से कम उतने ही कदम आना पड़ेगा जितने कदम मैं चल के उत्ते तक पहुंचे। अगर एक महल दे अंदर, एक मकान दे अंदर 100 साल का अंधेरा है, तो तार्किक ने ते कह देना है घट तो घट 100 साल के लगणगे नूं कढण वास्ते। अज दा अंधेरा थोड़ी है, 100 सालां दा है। भावें 100 सालां दा अंधेरा है, भावें 1000 साल दा अंधेरा है, इस अंधेरे नूं कढण लग्या एक छिन लगदा है। बत्ती जलाई ते गया, दीवा जलाया ते गया। 100 साल दे अंधेरे नूं कढण लग्या एक सैकंड लगदा। हाँ, अंधेरे नूं कढण दा एक ढंग गलत भी हो सकदा है। कोई डंडे ले लवे, सोटियां ले ले ते कढीए अंधेरे। आप दी व्यात लई अर्ज करां, मन दे अंधेरे नूं कढण वास्ते दुनिया विच बहुत सारे भगत अपने तन नूं सजा भी देंदे रहे ने। सूरदास ने अपनी अखां कढ दित्ती, आखे इन्हां ने मैनू भटकाया। सिख जगत दे च भी एक साधु नूं मैं जानदा, ईसाइयां च इस तरह के बहुत सारे होए ने जिन्हां ने अपने इंद्रे कट दिते। इन्हां ने सानू भटकाया। इस तरह के भी फकीर होए ने अपनी जबान ही कट दी कि बहुत झूठ बोली है, बड़ा कौड़ा बोली है, बड़ा मिथ्या बोली है। इन्हें मेरी जिंदगी च पिकियाई भर दी है, पर कट के परे की। अक्सर ऐसा होंदा रहा, ध्यान देना, गलती मन दी है, सजा धार्मिक लोग तन नूं देंदे ने। समाज ते कानून भी ऐसा करदा है। सऊदी अरब दे छोटियां छोटियां गलतियां ते कौड़े मारे जांदे ने, सरेआम चोरी ते बांह कट दित्ती जांदी है। अज भी मराको दे टूनिस दे सऊदी अरब दे अज भी, लीबिया दे अज भी चोर दी बांह कट दित्ती। चोरी दा ख्याल ते मन ने हथ नूं हुक्म दिता है चीज चुक लै, पर सजा ते हथ नूं दित्ती जा रही है। जिसने हुक्म मन्ने बेचारे ने, हथ ने मन दा हुक्म मन्ने। गलती मन दी, सजा तन नूं मिली। दुराचार ते मन दी विचार ने करवाया, शरीर ने ते सिर्फ साथ दिता, शरीर ने ते हुक्म मन्ने, पर हुण सजा शरीर नूं। समाज कानून आदि काल तो मन दियां गलतियां लई सजा तन नूं दिंदा है, अज भी दे रहे। इसे तो किधरे किधरे धार्मिक लोग भी धोखा खा गए, जिन्हां नूं असीं धार्मिक कहंदे हां। सूरदास भी धोखा खा गया, मैनू अखां ने भटकाया। हुण कौन दसे मन ने भटकाया? गल ते मन दे च आया, तेरे मन नूं गल चंगी लगी, तेरे मन नूं कोई रूप चंगा लगे, अखां ने साथ दे दिता।
कि तू हुण अखां नूं ते सज़ा दे दित्ती, इस सज़ा दे नाल मन ते नहीं बदले। जेल दे अंदर कोड़े मारन नाल, लंबियां सज़ावां नाल कोई कैदी नहीं बदलदे, अज तक ते नहीं बदले। उल्टा होर पैड़े हो जाते, पक्के मुजरिम हो जाते, दादे बन जाते। और पता है अंदर कैदी की कहते ने, एक दूजे तो पुछते ने तू कितनी दफा जेल आया? कहते मैं पहली दफा। कहते ने नवा खिलाड़ी एक पासे करो, जे नवा खिलाड़ी असी 10वीं दफा आ रहे हैं, असी 12वीं दफा आ रहे हैं। वो उस्ताद बन जाते, वो दादे बन जाते। जेलां मनुख नूं नहीं बदलदे। कोड़ियां दी सज़ा तन नूं दित्ती जा रही है, अपराध ते मन ने कीता सी। हथ पैर तन दे कट्टे जा रहे ने। कानून समाज अज तक ऐसा करदा रहा ते कर रहा है, अज तक भी कर रहे हैं, करदा रहा। धार्मिक लोग भी किधरे किधरे ऐसा करते हैं। मैं सिख जगत दे भी कुछ सज्जणा नूं जानदा जिन्हां ने ऐसा किया। गलती ते मन दी, अखां दी गलती थोड़ी सी। गलती ते मन दी, अखां दी गलती थोड़ी सी। गलती ते मन दी, जबान दी गलती थोड़ी है। कोई ज्ञान इंद्रियां दी, कर्म इंद्रियां दी गलती नहीं है, मन की गलती। मन नूं सज़ा ना कानून दे सकता है, ना समाज दे सकता है, ते मन नूं सज़ा ना ही मनुख दे सकता, ना स्वयं मनुख दे सकता। हाँ, मन नूं बदल सकता है। रूप दा चिंतन करदियां मन भटकिया सी, हुण अरूप नूं चिंतन करे। पदार्थां नूं वेख के लोभ पैदा होया सी, भटकिया सी, हुण परमात्मा दा सिमरन करे। आकार नूं वेख के इसने गलतियां कीतियां सन, हुण निरंकार दा चिंतन करे। इहदे नाल मन बदल सकदा है, मन तब्दील हो सकदा। अगर कोई गलत ढंग नाल हनेरे नूं कढण दी कोशिश करे, सोटियां ले आवे ते आखे मार मार के कढना है, सोटियां नाल, डंडियां नाल कुटना अंधेरे नूं। कुटदियां कुटदियां कुटण वाला ते थक जाए। हो सकदा उहदियां सोटियां भी टुट जाण, अंधेरा नहीं निकले, नहीं निकले। कि कोई ऐसा आ जाए, ओ बई ठीक है, मार खा के ते निकलदा नहीं पिया, बड़ा ढीठ है, बड़ा ढीठ है, पानी नाल धोवो ते भर भर के बाल्टियां पानी दियां लियान, आखने नूं धोना है। कोई आखे नूं बुहारी नाल झाड़ना है ते कढना है। बुहारी देंदे देंदे थक जाणगे, अंधेरा नहीं निकलदा। धोंदियां धोंदियां धोण वाले थक जाणगे, हनेरा नहीं धुलदा। पता नहीं कितने जपीश्वर तपीश्वर कर करके थके, टुटे, होया तो कुछ भी नहीं। इस तरह के थके टुटे मैनू मिलते हैं। इस्लामी जगत दे भी मैं देखे, कहते बथेरियां नमाज़ां पढ़ियां, कख नहीं होया। बथेरे देखे ने हिंदू जगत दे कर करके थके ने, कर करके थक गए ने। ऐसे में सिख जगत दे बथेरियां नूं कर करके थके ही नहीं, बेचारे टुट गए, टुट गए, करना ही रह गए। कर करके ऐसे थके टुट गए। हुण नहीं पाठ कर गए, हुण नहीं कथा कीर्तन सुन गए, हुण नहीं गुरुद्वारे आऊंगे, टुट जो गए। टूटे क्यों? थक गए। थके क्यों? बहुत पीता, बहुत पीता, कर करके थक गए, थक थक के टूट गए। पता नहीं कितने, पता नहीं कितने। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਦੇ
कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आम, जाए पहुंचे खसम के जो बीच न खाई कांद। अंबां दा बगीचा से बड़े दरख्त हरे भरे ते बूर आए, फुल आए। बागबान माली बड़ा खुश, बहुत खुश। इन्नी बूर लगी, इन्ने फुल लगे ने, अद की अंबां दी फसल नाल माला माल हो जावां। इन्नी बूर लगी, इतने फुल लगे ने। एक दिन ऐसा होया, जोर दा झक्खड़ आया, बड़ी जोर दी हवा चली, अद्धे तो भी ज्यादा बूर चढ़ गए। लगे हुए सन दरख्त नाल, चढ़ गए, टुट गए। हवावां दे थपेड़ियां ने तोड़ के रख दिता, हवावां दी मार ने तोड़ के रख दिता, तूफानां दी मार ने तोड़ के रख दिता। लेकिन फिर भी बूर लगी हुई है, फिर भी फुल वह लगे हुए ने। माली कहंदा कोई नहीं, फिर भी काफी ने। जे ये भी किधरे फली पोत हो गए, आपां माला माल हो जावांगे। रब दी नेत जोर दा मींह पिया ते गड़े भी नाल पै गए। जुलाई दे महीने दास कैलीफोर्निया सी ते कैलीफोर्निया दे सिखां दा ज्यादा काम है खेतीबाड़ी ते खेतीबाड़ी फलां दी। आड़ूआं दी फसल है, नाशपाती है, बदाम ने, अखरोट ने, इन्हां दे बाग ने वड्डे वड्डे सिंघां दे। किधरे बदल बने सन, कुछ दिनों की गर्मी सी ते मेरे मुंह निकलिया, मैं कहा अज ते बदल चढ़े, मौसम बड़ा सुहावना होया। नाल ही किसान खड़ा सी, गहने जी सानू ते सोने की कणी भी नहीं चाहिए, सोने की भी बारिश होवे नहीं चाहिए। पकण ते आई है साडी फसल, सत्यानाश हो जाना, ये बदाम झड़ जाणगे, ये अखरोट जड़ जाणगे, ए आड़ू ने, ये सेब ने, ते सारी फसल साड़ी तबाह हो जाएगी। असी ते इन्हां दिनां दे सोने दी कणी भी नहीं मंगदे। परमात्मा नूं कहंदे हुंदे आ, पानी नूं छड्ड तू सोने दी कणी भी ना बरसा। मींह पै गया, फुल्लां ते आई होई अंबां दीयां डारां, अंब दे बूटियां ते झड़ गई बहुत सारी बूर। उदास ते होया है बागबान, गुरु उदास ते हो जाता है। बड़ी मेहनत की थी, कितना संघर्ष किया, नावखंड पृथ्वी का भरमण, फिर किधरे तत्ती तवी ते किधरे कोई कुराइया कहंदा, किधरे ग्वालियर दे किले दी कैद ते किधरे कोई भूतना बेताला कहंदा, किधरे दिल्ली दे चांदनी चौक दे पिंजरे दे बंद, किधरे दर दर दियां ठोकर, किधरे बच्चे कंधां दे। मेहनत ते बड़ी की थी, कोई फसल आवे, कोई मनुख की जिंदगी च रस पैदा होवे। रस ही परमात्मा है, बेरसी ही संसार है। कह दइए आत्मरस कीर्तन, कीर्तन सुन के रास्ते अपने विचों पैदा होगा, बाहरों नहीं आना। खैर ये मैं बाद में बोला सकता। दुखी ते होया, बड़े बड़े अवतारी पुरुष दुखी ते हो जाते। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। इन्ने गड़े पै गए, नीमी पै गई, चढ़ गए, टुट गए। कितने आया किसी वक्त मैं जुड़े होया देखदा सी। इस लैन दे मैं सन 56 दे चलिया, कथा करनी आरंभ की थी 1956 दे।
कितने जुड़िया नूं अज मैं जिंदा ते देखदा, पर गुरु नालों टुटे हुए। पहले जुड़े सी, अज नहीं। बड़े शौक नाल नितनेम करदे सन, नहीं करदे। बड़ी भावना नाल जपदे सन, नहीं जपदे। बड़ी भावना नाल दान पुण्य करदे सन, सेवा करदे सन, नहीं करदे। थक के टुट गए, टुट गए। दुखी ते होया बागबां, ऐनी बोर जड़ गए, इतने बोर जड़ गए। लेकिन फिर भी कुछ बची है ते सहजे सहजे हुण अंबियां ते आई है। उन्हां विचों अंबियां निकलण लगी है, खुश है। बागबां खुश है, कोई नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਅੰਬੀਆਂ ਪਕੜ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆ, ਪੱਕਣ ਲੱਗੇ। अंबियां पकन लगे। इतने गालड़ आए, इतने तोते आए, इतने कौवे आए, टुक के रख। जो अंबियां पकन ते आईयां सन, टुक दे। कुछ तोतियां ने टुक दित्तियां, कुछ कवियां ने, बचियां कुछियां गालड़ा ने। हुण जुड़िया हुई तो हैं ये अंबियां दरख्त नाल, पर टुकिया हुई दागी, दागी। जुड़िया हुई तो हैं दागी, टुक दिता है गालना। मैं अर्ज करा, किसी की जिंदगी ते दुखों के कोई तूफान चल पैंदे ने, आर्थिक या परिवार, किसी अजीज संबंधी अकारब की मौत हो गई है, चलदा होया काम कार दिवालिया हो गया। इस तरह के तूफान जिंदगी चल रहे हैं, और बहुतियां की जिंदगी झड़ जाती है, झड़ पैंदे कच्चे झड़ पैंदे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हां दी जिंदगी कोई बहुत वड्डा हादसा हो जाता है, कोई असाध रोग, ऐसा रोग शरीरक कोई इलाज नहीं, कोई इलाज। गुरु अर्जन देव जी इसका जिक्र भी करते हैं, असाध रोग उपजो तन भीतर, करत ना काहू करे। ऐसा रोग पैदा हो गया असाध, कोई वैद डॉक्टर दे पल्ले नहीं, कोई दवाइयां उसका इलाज नहीं करती। बड़ी कीमती पंक्ति है गुरु अर्जन देव जी, असाध रोग उपजो तन भीतर। ऐसा रोग पीड़ा ते वधदी जा रही है, इलाज कोई भी नहीं। दर्द ते वधदा जा रहा है, दवाई कोई नहीं। वेदना ते वधदी जा रही है, हकीम वैद डॉक्टर कोई नहीं, उन्हां दे वस दी गल नहीं। ऐसा रोग जो जांदा नहीं, निराश होके मनुख जिंदगी तो निराश होके परमात्मा तो भी निराश हो जाता है, टुट जाता है। पता नहीं मैं कितने देखे इस तरह के। 9 साल पे एक मंजे पे मरीज नूं मैं मिलण वास्ते गया सी, इंदौर दी गल ते मेरे मुंह वाहिगुरू निकलिया। उन्होंने देख के ते मैं क्या गुरुमुखो 5 मिनट वाहिगुरू वाहिगुरू आख्या करो। मैनू कहने लगे कोई होर गल करो, छड्डो। अच्छा और कोई गल करो। निराश हो, 9 साल दा मंजे ते थक गया, टूट गया। ऐसे गड़े पै गए, ऐसी जोर दी बारिश पै गई
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਰ ਅੰਬੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਜਸ ਅਪਜਸ ਵਿਧੀ ਹਾਰ, ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸ ਅਪਜਸ ਵਿਧੀ ਹਾਰ। ਜਸ ਅਪਜਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਅਪਜਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਣ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਉ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਕਉ ਦਿਰ ਦੁਲ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਥਾ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਕਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਕੁਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ।